امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ آج ایران کے خلاف نئی اقتصادی پابندیوں کا اعلان کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران پر اب تک کا سب سے بڑا معاشی حملہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دیر پہلے بیان دیا کہ ایران مکمل تباہ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کے بیان پر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے ٹرمپ کے انتخابی نعرے کو ترمیم کے ساتھ شیئر کیا۔ لکھا، میک امریکہ ہنگری اگین۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ جاری رہی تو آبنائے ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ چین نے ایران کے خلاف ممکنہ امریکی اقتصادی دباؤ کو غیر ضروری قرار دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے ایران کے دارالحکومت تہران میں ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات کی۔ علاقائی امن و استحکام کے فروغ اور مشرق وسطیٰ تنازع کے حل کی کوششوں پر توجہ مرکوز رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں شریک تھے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا جواب وزیر داخلہ دیں گے، وزیر اطلاعات یا وزیر قانون جواب نہیں دیں گے، کیونکہ توہین عدالت یہ ہوئی ہے کہ ایک اسپتال کے بجائے دوسرے اسپتال میں چیک اپ ہوا ہے، مگر یہ اسپتال امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے تبدیل کیا گیا اور امن و امان کی صورتحال کی ذمہ داری داخلہ امور کی وزارت کی ہے۔ اسی لیے وزارت داخلہ سپریم کورٹ میں پیش ہوگی اور وہ سپریم کورٹ میں ثبوت سامنے رکھیں گے۔ تحریک انصاف نے جو پٹیشن دائر کی ہے توہین عدالت کی، تو اس میں تو انہوں نے محسن نقوی صاحب کو فری نہیں بنایا۔ یہ بھی بات وہاں پہ سپریم کورٹ میں ہوگی کہ جو منسٹر انفارمیشن ہے یا منسٹر لا ہیں تو وہ یہ بات تو کہیں گے کہ دیکھیں وہاں پہ ایشو تو ایک ہی ڈسکس ہونا ہے، اپنا جو ہے وہ توہین عدالت کیا ہوئی ہے۔ توہین عدالت یہ ہوئی ہے کہ ایک ہاسپٹل کی بجائے یعنی چیک اپ ہوا ہے، ماہرین اسپیشلسٹ پروفیشنل ڈاکٹرز موجود تھے، شفا انٹرنیشنل کے بھی تھے، پمز کے بھی تھے، اور جو ایک یعنی بنیادی مقصد تھا وہ پورا ہوا ہے، لیکن ایک ہاسپٹل کی بجائے دوسرے ہاسپٹل میں ہوا ہے۔ اب جس ہاسپٹل میں وہ لے کے نہیں گئے وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشنز تھیں اس کی ذمہ داری تو جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے لوگوں کے ذمہ تھی، انہوں نے جا کے وہاں پہ ثابت کرنا ہے۔ انفارمیشن منسٹری کے لوگوں نے تو ثابت نہیں کرنا، نہ لا ڈویژن والوں نے ثابت کرنا ہے، تو بہرحال وہ لوگ جو ہیں وہ پیش ہوں گے اور آگے وہاں پہ اپنی جو ایویڈنس ہے جو ساری چیزیں وہ سامنے رکھیں گے۔ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست تحریک انصاف کی جانب سے دائر نہیں کی گئی، بلکہ درخواست ڈاکٹر عظمیٰ خان کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، بانی تحریک انصاف کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کے وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا کہ یہ ڈاکٹر عظمیٰ اور ان کی مرضی ہے کہ توہین عدالت کی درخواست میں کس کو فریق بنانا ہے اور کس کو نہیں۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے خلاف توہین عدالت کے ثبوت ان کے پاس نہیں ہیں، اس لیے انہیں توہین عدالت کی پٹیشن میں فریق نہیں بنایا گیا۔ وزیر داخلہ تو محسن نقوی صاحب ہیں، لیکن تحریک انصاف نے محسن نقوی صاحب کو اس میں فریق نہیں بنایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ درخواست جو ہے یہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کی جانب سے دائر ہوئی ہے، یہ تحریک انصاف کی جانب سے دائر نہیں ہوئی۔ یہ ڈاکٹر عظمیٰ خان اور ان کے وکیل عزیر بھنڈاری صاحب کا آپس کا معاملہ ہے۔ میں نے ضرور بات کی تھی عزیر بھنڈاری صاحب سے، انہوں نے کہا کہ یہ میرا پروفیشنل فیصلہ ہے، میں کس کو پارٹی بناؤں کس کو نہ بناؤں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بڑے غور سے پورا دن لگایا، ہم پہ یہ بھی ایک تنقید ہوئی یا ان پر تنقید ہوئی کہ یہ جمعے والے دن کیوں درخواست دائر نہیں کی گئی، یہ ہفتے والے دن کیوں دائر کی گئی۔ ان کا یہ جواب تھا اور بالکل ٹھیک تھا کہ پورا دن تمام ریکارڈ دیکھا، میں نے تمام بیانات دیکھے، ان کی جو کاپیاں ہیں وہ اپنی درخواست کے ساتھ لگائیں، جو مجھے اس میں ملوث نظر آیا اس فیصلے میں کہ سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں ماننا، اس کو میں نے پارٹی بنایا۔ اور وزیر اعظم جو ہیں وہ بالآخر حکومت کے سربراہ ہیں، تمام ذمہ داری بالآخر ان کے کندھوں پر ٹھہرتی ہے، لہٰذا ان کو پارٹی بنایا۔ اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کو بنایا جنہوں نے اس حوالے سے کوئی بات کی یا ان کی بات ریکارڈ پہ ہمارے پاس موجود تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کل ہمیں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے اگر کوئی ثبوت ملتا ہے تو میں ان کو بھی پارٹی بنا سکتا ہوں، آج میرے پاس ثبوت نہیں ہے، میں اس لیے نہیں بنا رہا۔ یہاں آپ کو بتائیں گے صومالیہ میں بحری قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال بنے پاکستانی ملاحوں کی واپسی 4 ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود تاحال ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ اہل خانہ تاحال پریشان ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یقین دہانیوں کی
बजाय अमली इकदामात किए जाएं। लंदन के दौरे पर पहुंचे नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा, कज़ाकों की तावान देने की बात नहीं मानी जा सकती। आलमी कानून है कि मक़बूलों को तावान देकर नहीं छुड़ा सकते। कज़ाकों को इस तरह पैसे मिलना शुरू हो गए तो वो यही काम जारी रखेंगे। कज़ाकों के हाथों फंसे 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जिनकी तफसीलात अभी नहीं बताई जा सकती। कोशिश है कि किसी भी तरीके से मल्लाहों को छुड़ाया जाए। बार्गेन करके कोई उनको कोई रैंसम दे के ना छुड़ाएं, ये इंटरनेशनल रूल्स हैं जी। और वो इसलिए हैं कि ताकि अदरवाइज तो फिर ये पायलट जो है, ये जो कज़ाक हैं, ये तो फिर यही काम करेंगे अगर उनको पैसे मिलेंगे। तो ये बड़ी टेक्निकल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें पब्लिकली कही जा सकती हैं, कुछ चीज़ें अभी पब्लिकली नहीं कही जा सकती, लेकिन मेरा मेन मकसद आज पहली मीटिंग जो मैंने IMO से की है, सेक्रेटरी जनरल से, वो यही है कि हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से मसलन वो जहाज़ जो है वो ओनरशिप किसी और कंट्री के सिटीजन की है, उसके ऊपर जो फ्लैग है वो पलाव का है, ये पॉजिटिव होगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मेन मकसद एज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये है कि हमारे जो 10 पाकिस्तानी भाई जो वहाँ इस वक्त फंसे हुए हैं उनको हम किस तरह निकालें, लेकिन देयर आर रूल्स ऑफ द गेम। कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जी आप, तो हम सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के कोशिश है कि जितनी जल्दी ये मामला हल हो इंशाल्लाह इसको। इस्लामाबाद में FIA ने कॉल सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के प्लाजे में छुपे मजीद 50 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए। तमाम गैर मुल्कियों को जेल मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले 250 गैर मुल्कियों को अडयाला और अटक जेल मुंतकिल किया गया था। गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने के पहले मरहले में 50 वियतनामी बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 13 से 21 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया। इन गैर मुल्कियों के खिलाफ बैरून मुल्क मुकीम शहरियों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग करने और जिनसी मवाद के जरिए माली फायदा हासिल करने के इल्जामात के तहत तहकीकात की गई। देखिए मरियम नवाज की रिपोर्ट। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने स्कैमर्स की गैर कानूनी और मुनज़्ज़म साइबर क्राइम सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों का दायरा वसी कर दिया। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-3, G8 और एक निजी हाउसिंग सोसाइटी की कसीरुल मंजिला इमारत पर मुश्तमिल कॉल सेंटर पर छापे। NCCIA ने 13 अगस्त को इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कसीरुल मंजिला इमारत पर छापा मारकर 114 गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार किए। इनमें 111 चीनी और 3 वियतनामी शहरी शामिल हैं। मुल्जिमान रजिस्टर्ड IT कंपनी की आड़ में इलेक्ट्रॉनिक जराए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ममालिक के अफराद को मुबैना तौर पर निशाना बनाते थे। तहकीकात में ऑनलाइन जिनसी गुफ्तगू, वीडियो चैट्स और फहाश मवाद के जरिए मुबैना तौर पर माली फायदा हासिल करने के साथ साइबर रोमांस से मुंसलिक माली फ्रॉड की सरगर्मियों का भी जायजा लिया जा रहा है। 19 अगस्त को NCCIA ने इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-3 में ओफो ग्रुप नामी कॉल सेंटर पर कार्रवाई की। FIR में इलेक्ट्रॉनिक जराए के जरिए जिनसी गुफ्तगू और वीडियो सरगर्मियों के लिए अफराद को मुबैना तौर पर उकसाने, जालसाजी और माली फ्रॉड से मुतालिक दफात शामिल की गई हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में भी एक मुबैना ऑपरेशनल कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करके डिजिटल डिवाइसेस और दीगर मुतलका मवाद फॉरेंसिक जांच के लिए कब्जे में लिया गया। जराये के मुताबिक FIA, NCCIA और इस्लामाबाद पुलिस की तहकीकात का दायरा PTA, FBR और SECP तक बढ़ा दिया गया है। NCCIA ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के 2 मुलाजमीन को भी गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू की हैं। जियो न्यूज को हासिल इंडोनेशियन शहरी के बयान के मुताबिक उसे पाकिस्तान में YG नामी एक चीनी शहरी ने बुलाया। वो 3 माह कबल शेफ के तौर पर पाकिस्तान आया और बाद में मुबैना स्कैम्स में मुलव्विस रहा। उसने दावा किया कि उसका ग्रुप 9 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनमें 2 चीनी और 7 इंडोनेशियन शहरी शामिल थे। ग्रुप मुबैना तौर पर माहाना $80,000 तक कमाता था। उसके मुताबिक उनका हदफ इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाली 40 साल से जायद उम्र की खवातीन थीं। अब तक गैर कानूनी तौर पर कॉल सेंटर्स चलाने वाले गिरफ्तार 671 गैर मुल्की शहरियों को फौरन ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया गया है। वजारत खारजा के जरिए मुतल्लिका ममालिक को भी मुबैना जराइम से आगाह करने का अमल जारी है। वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ नई टास्क फोर्स तश्कील दी है, जिसमें हसास इदारों,
FIA, साइबर क्राइम, नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी, विफाकी पुलिस और जिले इंतजामिया के नुमाइंदे शामिल होंगे। टास्क फोर्स सेक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, गैमलिंग और ऑनलाइन स्कैम समेत मुनज़्ज़म साइबर जराइम की तहकीकात करेगी। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। NCCIA की जानिब से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार न करने की दहानी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत को FI ने बताया कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ कोई नई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा नहीं है। DSP लीगल साजिद चीमा ने बताया कि पुलिस के पास शेर अफजल मरवत के खिलाफ कोई नया मुकदमा नहीं, उनके खिलाफ 2023 और 2024 के 15 केसेस दर्ज हैं। शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने मुकदमात की तफसीलात के बारे में दायर दरख्वास्त में कहा था कि उनके एक मावन को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने के लिए दबाव डाला जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जंतर मंतर नई दिल्ली पर कॉकरोच जनता पार्टी पर भारतीय पुलिस के तर्ज अमल पर तनकीद की है। एक बयान में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि भारतीय पुलिस ने नौजवानों के एहतजाज पर हद से ज्यादा ताकत इस्तेमाल की। मुजाहिरीन के खिलाफ पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई, जबकि बिजली के झटके देने वाले आलात से भी तशद्दुद किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि नौजवान मुजाहिरीन के खिलाफ भारतीय पुलिस का रवैया गैर ज़रूरी और गैर कानूनी था। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को नई दिल्ली के इंडिया गेट पर दोबारा पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है। हिना जावेद के मुबैना कत्ल का मामला कौमी असम्बली पहुँच गया। ऐवान ने वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मामले की शफाफ तहकीकात और ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हिना जावेद पार्लियामेंट से वाबस्ता रह चुकी थी, इसीलिए सिर्फ एक फौजदारी मुकदमा नहीं बल्कि पूरे ऐवान के लिए बाइस तशवीश मामला है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने कहा कि ज़िम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई शादीशुदा खातून सिदरा अरब केस में इस्तगासा ने नामजद मुल्जिमान की ज़मानतें मनसूख करने की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पिंडी ने फरीकैन को 5 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। मुकदमे में जिरगे के मुबैना सरबरा असमतुल्लाह खान मकतूला सिदरा अरब के वालिद भाई साबिक शौहर समेत 13 मुल्जिमान नामजद हैं। तमाम मुल्जिमान की ज़मानत सेशन अदालत ने मंजूर की थी। सिदरा अरब को पिछले साल 16 और 17 जुलाई की शब गला दबाकर कत्ल कर दिया गया था। मीर रज़ा की मौत की वजह जानने के लिए सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन कायम कर दिया है। कमीशन मीर रज़ा अली की मौत के असल हक़ाइक़ और पुलिस तहकीकात कानून के मुताबिक होने या ना होने का जायज़ा लेगा। मीर रज़ा के वरसा ने जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया है। सिंध हुकूमत ने मीर रज़ा की मौत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक रुकनी कमीशन जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल है। कमीशन मीर रज़ा की मौत के असल हक़ाइक़, हालात, पुलिस तहकीकात के गैर जानिबदाराना और कानून के मुताबिक होने या ना होने का जायजा लेगा। कमीशन पुलिस, MLO या किसी सरकारी अफसर की गफलत या फ़राइज़ में कोताही की भी तहकीकात करेगा। शवाहिद छुपाने, तब्दील करने या केस में कवर अप के इल्ज़ामात का भी जायजा लिया जाएगा। कमीशन मज़ीद तफ्तीश, फोरेंसिक तज्ज़िये और कानूनी या महकमाना कार्रवाई की भी सिफारिशात देगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन 30 रोज में अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा और तमाम मुताल्लिक़ा इदारों और अफसरान को कमीशन से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत की गई है। इससे कबल मीर रज़ा के वरसा ने जुडिशल कमीशन के खिलाफ JID के क़याम के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है, जबकि पुलिस को केस का चालान जमा कराने से रोक दिया है। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों समेत 19 अफराद को फरीक बनाया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में वरसा के वकील जिब्रान नासिर ने बताया कि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अभी तक किसी को मुल्जिम नामजद नहीं किया गया। मोटरसाइकिल का आज तक नहीं पता चल सका, उस वाइट ऑल्टो का आज तक नहीं पता चल सका भाई कौन ड्राइव कर रहा था। हो सकता है बेकसूर हो, इत्तेफाक से गुजर रहा हो, बंदा तो सामने ले आए। हमें कहा जाता है आपको नहीं पता रात को यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े होके हमने कितनी वाइट ऑल्टे रुकी हैं। वो खुदा के बंदो, मैंने गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट पहनी कि नहीं पहनी, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, आपका कैमरा देख के 10,000 का चालान मेरे घर पे भेज देता है। बेशक मैं गाड़ी मेरे इस्तेमाल में भी हो के ना हो, मगर इस काम के लिए आप लोग अपने कैमरा टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं कर रहे और रात को यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े हुए देख रहे हैं कि सुबह 3 से 5 बजे तक जो भी ऑल्टो गुजरती है उसको पकड़ के पूछें। ये हम 1950 की दहाई में आ गए, ये तफ्तीशी मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी जानिब मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरख्वास्त जमानत सेशन अदालत ने काबिल समात होने पर दलाइल तलब करते हुए अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तौसीक कर दी है। साथ ही रिपोर्टर अमीन अनवर, दानियाल सैयद के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। कराची में 15 रोज़ा सलाम कराची फेस्टिवल का इफ्तिताह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किया। कहा शहर की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। सकाफत, खेल, कारोबार और शहरी सरगर्मियों के रंग के लिए सलाम कराची फेस्टिवल के तहत मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 7 सितंबर तक सलाम कराची फेस्टिवल की 15 रोज़ा तकरीबात जारी रहेंगी। हमने मुनासिब समझा कि ये 15 रोज़ा तकारीब इस तरीके से मनाई जाए कि हम कराची का मुस्बत इमेज है
उसको दुनिया के सामने उजागर करें। मेयर कराची ने शहरियों से अपील की कि आइंदा 14 रोज अपने मामूलात में से वक्त निकाल कर फेस्टिवल की तकरीबात में शिरकत करें। कैमरामैन सरवर रजा के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज कराची। बलूचिस्तान के ज़िला पशीन में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सड़क किनारे काम करने वाले 5 मजदूर जाम बहक एक ज़ख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई पशीन के इलाके सरानान में किली सलमान खेल में नामालूम मुसल्लह अफराद ने की। जाम बहक अफराद का ताल्लुक मुल्तान से है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत पेट्रोल कंपनियों को बेजा मार्जिन दे रही है, अवाम परेशान है और ब्यूरोक्रेसी की मुराद में इजाफा किया जा रहा है। 13 रबीउल अव्वल को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल देंगे। हड़ताल सितंबर के पहले हफ्ते में होगी। ईरान की पार्लियामेंट ने ट्रंप पर काले बाफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और फौजी शिकस्त छुपाने का इल्ज़ाम लगा दिया है। मीडिया सेंटर से जारी बयान में ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि अमेरिका का झूठा सदर, जिसके झूठे बयानात की तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो एक बार फिर अपनी फ़ौजी नाकामियों पर पर्दा डालने और अमेरिकी अवाम और आलमी राय आमा की नज़र में अपनी साख बहाल करने के लिए झूठी खबरें घड़ने और गंदे मीडिया खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के मुताबिक बाक़र कालिबाफ ने दौरा इराक में अपने खिताब के दौरान ईरान और इराक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने और इक़्तिसादी जंग जीतने पर जोर दिया था। कहा था कि ईरान ने फौजी जंग में अमरीका को शिकस्त दी, ताहम अब अमरीका ने ज़हनी और इक़्तिसादी जंग का रास्ता इख्तियार किया है। ट्रंप ने कालिबाफ के रिमार्क्स को गलत अंदाज में पेश करके उसे ईरान की फौजी शिकस्त के एतराफ़ के तौर पर पेश करने की कोशिश की। डॉक्टर कालिबाफ के इजलास की मुकम्मल वीडियो आवाम के लिए दस्तयाब है। उनकी तकरीर के असल मतन और जाली खबरों की झूठी सुर्खियों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क अमरीकी सदर की गुमराहकुन इतलात की मुहिम के लिए एक और रुसवाई है। कराची में फराहमी आपके ताख़ीर के शिकार के फोर मंसूबे के लिए विफाक ने 7 अरब 89 करोड़ 71 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। फैसला वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी इजलास में किया गया और इजलास ने बलूचिस्तान में रेकोडेक मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए FC को 56 करोड़ 70 लाख रुपए की ग्रांट जारी करने की मंजूरी भी दी। 1 तोला सोना 4,200 रुपये महंगा होकर 4,87,136 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,601 रुपये इजाफा हुआ। 10 ग्राम सोना 4,17,640 रुपये का हो गया है।